Today we are going to start exercise 5.3 from the chapter Arithmetic Progressions. This exercise is based on adding the sums of an AP, sum to n terms of an AP. Suppose we have an AP A1, A2, A3 up till AN. AN is the nth term. Nth term may be 50th term, 100th term, any term. It is the nth term. So what is sum? N by 2, 2a plus n minus 1d. This is the formula for calculating the sum of all these terms. Now, we also have another short formula. How to calculate that formula? We will understand first of all that thing. So, n by 2, 2a is split into a plus n minus 1d. Now, a plus n minus 1d is an. We have done this in last exercise. Nth term an. Nth term we have done in the last exercise a plus n minus 1d. इस a को हमने ब्रेक किया और ये हमारा nth term. अब this nth term is also known as the last term. So another formula for calculating the sum is n by 2 a plus n. First term plus last term. We will use both the formulas in this exercise. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3. First question, third part. First question, third part. There are 4 parts in the question. I will solve 2 for you. 2 will be homework for you all. 0.6, 1.7, 2.8 up till 100 terms. We have to find the sum of this AP. Now, AP में सबसे पहले, this is the first term. तो हम लिखेंगे A is 0.6, D is second term minus first term, 1.7 minus 0.6, 1.1, and N is 100. Applying the formula S100 is 100 by 2, 2a plus n minus 1 into d. 50, 2 6 are 12, 1.2, 99 into 1.1, 50, 1.2 plus multiplying 108.9, 108.9, 1.2, 50 into 110.1. Again multiplying by 5. What is the answer? 5505. We have solved the question using direct formula. क्या था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. n यहाँ पर 100 था, a 0.6, b 1.1. पार्ट पर चलेंगे. 4th part. First question, 4th part. Again, it is in fraction. 1 by 15, 1 by 12, 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 up to 11 terms. First term A is 1 by 15, D is 1 by 12 minus 1 by 15. यहाँ हमें LCM लेना पड़ेगा. 12 and 15 का LCM 180. 12 15s are 15 1s are 15.
15 12s are. So the answer is 3 by 180 and after cutting it is 1 by 60. A पता लग गया, D पता लग गया, N is 11. Again the same formula, Sn is N by 2, 2A plus N minus 1D. Substituting the values, 11 by 2, 2, what is a 1 by 15 plus 11 minus 1 into 1 by 60. 11 by 2, 2 by 15 plus 10 by 60. 0 से 0 गया, 15 और 6 का LCM लेंगे, that is 30. 15 twos are 2 twos are 4, 6 fives are 11 by 2 into 9 by 30. 3 threes are 3 tens are. The answer comes out to be 33 by 20. Simple formula, direct substitution, and you get the answer. This is first question, fourth part. Now, slight change in this question. Here, number of terms are not given. AP is given first term till last term. तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? एपी के हर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए आपको क्या गिवन है एपी से. सो ए इज 7, डी इज 10.5 minus 7, 21 by 2 minus 7 by 1, 21 minus 14, that is 7 by 2. 1 2s are 2 7s are 14. So this is 7 by 2. Now n is not given. जो हमारे दोनों फॉर्मूलाज हैं Sn n by 2 2a plus n minus 1d, n by 2 a plus n. दोनों में हमें n की जरूरत है. आई होप आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं. हमें दोनों ही फॉर्मूलाज में, बोथ फॉर्मूलाज में हमको n की जरूरत है. तो यहां पर हमें पहले an, व्हाट इज an? 84, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. an इज a plus n minus 1d. 84 is 7 plus n minus 1, 7 by 2. 7 इधर आएगा, 84 minus 7, n minus 1, 7 by 2. 77 into 2 by 7 is n minus 1. 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा. 22 plus 1 is n और n is 23. n आ गया. अब यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्मूला पर जा सकते हैं. S23 is 23 by 2a plus l. Direct 23 by 2 into answer. Direct formula. I have applied direct formula here. N by 2 a plus l. This is how we can solve this very question where we have not been given n. n नहीं पता हमें, but first term, last term और AP से A और B तो फटाफट से पता चलते हैं. सबको समझ आ गया? आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन. थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप सभी के लिए होमवर्क है. थर्ड पार्ट करेंगे -5, -8, -11 up till so on, that is -230. सेम जैसे हमने पिछला पार्ट किया. A -5, D is -8, minus of -5.
केयरफुली हमें साइन को ध्यान से लिखना है। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये टर्म्स खुद भी नेगेटिव हैं, तो एक फॉर्मूले का नेगेटिव आएगा -8 + 5 that is -3. So what is an? -230. Starting with the same formula, an is a plus n minus 1d, -230 is -5 n minus 1 into -d. -230 plus 5 is -3n plus 3. अब यहाँ मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, थोड़ा सा मैं अलग दो तरीके आपको बता रही हूँ, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया। पिछले क्वेश्चन में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए थे, तो आप बोथ वेज इसको सॉल्व कर सकते हैं। -230 + 5 -225 -3 is -3n. -228 is -3n. n is 2 to 8 by 3. 3 7s are 21. 3 6s are 18. n आ गया हमारे पास. Sum is again easy. S76. Now, first of all, let's write the formula. What was the formula? Just for a revision, Sn is n by 2 a plus l. So S76 is 76 by 2 a plus l 38 into -235. अब यहाँ पर AP हमारी नेगेटिव टर्म्स की है। इंटीजर्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होता है तो नेगेटिव ही आता है, तो सम हमारा नेगेटिव आएगा। 235, 38, 8 5s are 40, 8 2s are 16 plus 2 18, 5 3s are 15, 9 and 1 10, 7. समझ आ गया सभी को? क्लियर हुआ? नंबर 3। अब एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन 3 जो हमें गिवन है उसके 10 पार्ट्स हैं। हमने कुछ सॉर्टिंग की है और कुछ पार्ट्स हम आपको सॉल्व करवाएंगे, कुछ आप होमवर्क में करेंगे। तो शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमें ए बी ए एन गिवन है, हमें एन और एस एन ढूंढना है। अब सबसे पहले ए एन के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। a plus n minus 1d is 50, a is 5, n हमें ढूंढना है n minus 1 into 3 is 50 minus 5, 3n minus 3 is 45, 3n is 45 plus 3, 3n is 48, n is 16. n पता लग गया, Sn S16 के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें nth टर्म इज द लास्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट भी पता है लास्ट भी पता है। फिर से मैं शॉर्ट फॉर्मूले की तरफ जाऊंगी, n by 2 a plus l. So S16 is 16 by 2 5 plus 15. 2 8s are 8 into 55. 440 is the answer. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद कर रही हूँ सभी को अच्छे से समझ आया। अगले जो दो पार्ट्स हैं थोड़ा सा चेंज है, एक में ए फाइंड आउट करना है, एक में डी। तो चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड आप करेंगे। क्या है सेकंड पार्ट? इज a is 7 and a13 is 35. a13 is 35. You have to find d and s13. Again easy. a13, अब हमारा जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत बार बताया
a प्लस n माइनस 1d को अगर आप शॉर्ट में नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, a13 इज a प्लस 12d। आपको सिंपली एक नंबर कम करना है, a50 इज a प्लस 49d। तो यहाँ 13 है, आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस 12d। अब a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 12d is 35 minus 7, 12d is 28. What is d? 4 7s are 4 3s are. Now what is S13? अब आप देखिए, आपको 13 टर्म्स का सम निकालना है और अगर आपको 13th टर्म गिवन है, फिर से शॉर्ट फॉर्मूले पर जाएंगे, n/2 a प्लस l। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको d नहीं पूछा होता तो आप डायरेक्टली S13 फाइंड आउट कर सकते थे। n भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, बट हमें पूछा था d निकालो, इसलिए हमने d कैलकुलेट किया। नाउ 13/2 into 42, 2 21s are, मल्टीप्लाई करेंगे 1321 को, so the answer is 273। हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए, अभी थर्ड फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब हम फिफ्थ पार्ट पर चलेंगे। पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट में डी गिवन है हमें 5, S9 हमें गिवन है 75, A एंड A9 हमें ढूंढना है ना। इसके फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे, Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 5 इज इक्वल टू 75। 9/2 2a plus 8 into 5 is 75. 9/2 2a plus 40 is 75. 2 and 40 both terms में से 2 कॉमन आ रहा है। 9/2 2a प्लस क्या आएगा, यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया, a प्लस 20 इज 75। दिस गेट्स कैंसल्ड। दो तरीके से चल सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके 9a प्लस 180 इज 75। 9a इज 75 माइनस 180, so 9a is minus 5 105. So what is a? Minus 35/3. This is a. What is a9? a9 is a plus 8d. Minus 35/3 plus 8 into 5 minus 35/3 plus 40, LCM 3 minus 35 plus 120। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8। दिस इज द आंसर A9। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर आया, बट सॉल्व इसी तरह करेंगे, बिना कंफ्यूज हुए अच्छे से आप वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट अगेन विल बी अ होमवर्क। हम सेवेंथ पार्ट पर चलेंगे। सेवेंथ पार्ट n is 62,
A is 8, AN is 62, SN is 210, find N and D. अब हमें AN, SN दो चीजें गिवन हैं, दो फॉर्मूला अप्लाई होंगे. AN is 62, A plus N minus 1D is 62. A की वैल्यू पुट करेंगे, N minus 1D 62, N minus 1D is 62 minus 8, N minus 1D is 54. यहाँ पर हमें ये मिला. अब हम Sn की तरफ जाएंगे. Sn is 210, N by 2, 2A plus N minus 1 into D is 210. N हमें पता नहीं. 2 into 8 plus N minus 1D is 210. अब देखिए यहाँ पर ये N minus 1D 54 है. इक्वेशन 1 ले रही हूँ, यहाँ पुट करूंगी N by 2, 16 plus 54 is 210. Now N by 2 ऐड करेंगे इसको, 10, 70 is 210. कटिंग करेंगे, N क्या आएगा, 210 by 35, 7 5s are 7 30s are 5 6s are. N हमारा 6 आ गया. यूज द वैल्यू ऑफ N in 1. फर्स्ट इक्वेशन में 6 minus 1 into D is 54. So D is 54 by 5. 5 ones are 0, 5 8s are 10.8. So ये हमारा 7th पार्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सॉल्व करेंगे हम. पार्ट 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. AN is 4, D is 2 and SN is minus 14. We have to find N and A. अगेन इसमें दो चीजें गिवन हैं. फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, A plus N minus 1D is 4 और D की वैल्यू डालेंगे. N minus 1 into 2 is 4. So A plus 2N minus 2 is 4. A plus 2N is 4 plus 2. A plus 2N is 6. फर्स्ट इसमें हम रखेंगे यहाँ पर N by 2, 2A plus N minus 1D is minus 14. N by 2, 2A plus N minus 1 into 2 is minus 14. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है, दोनों टर्म्स में 2 है तो 2 कॉमन आकर यहाँ से कट हो जाएगा. सो N by 2, 2 into A plus N minus 1 is minus 14. ये 2 हमारा कट हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से A को 6 minus 2N यहाँ पुट करेंगे. 6 minus 2N plus N minus 1. N into 5 minus N is minus 14. 5N minus N square is minus 14. 0 is N square minus 5N minus 14. सारी टर्म्स हम उधर ले गए. क्या दिखा हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे.
14 के फैक्टर्स 7 and 2, थोड़ा इजी है ये, ओरल हो सकता है। 7 minus 2 is 5, पर हमें -5 चाहिए। 7 देखिए क्या है, 7 minus 2 5 है, पर आपको -5 चाहिए, तो -2 plus 5 हम लेंगे। सो -7n plus 2n minus 14 is 0, n is common, n minus 7, 2 is common. Splitting the middle term, इन दो टर्म्स में से n कॉमन लिया, n minus 7, इन दो टर्म्स में से हमने 2 कॉमन लिया, n minus 7, ब्रैकेट सेम आ गई, हमने ब्रैकेट कॉमन ली, यहां बचा n plus 2 is 0, n is 7, n is -2. You have to neglect this value. n cannot be negative. n is a natural number. Number of terms of the AP. तो n हम 7 लेंगे. First part हमारा n 7 आ गया. Putting the value of n here, 6 minus 2 into 7, 6 minus 14 is -8. This is the answer. तो यहाँ 2-3 बातें देखने की हैं। चैप्टर हमारा एपी का था, आई उसमें क्वाड्रेटिक, हमारे चैप्टर्स मिक्स्ड हैं, कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यूज हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक को हम सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके 2 वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, बट n हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर हम a फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बार बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से करेंगे इसको, सभी को समझ आ गया होगा। अब हमने इस पार्ट के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करके दिखाए, लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Here we are given an AP 9, 17, 25 and the sum we have to take. How many terms should be taken to get sum 636? ये आपका 4th क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए AP से A पता चलता है 9, D पता चलता है 17 minus 9 8। अगेन बड़ा सिंपल, S आपका 636 है, n by 2 2a plus n minus 1 into d is 636। वही फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं सेम लगेगा। अब यहाँ पर भी आप 2 तरीके से चल सकते हो। अगर आपको कॉमन लेना कन्वीनियंट लगता है तो आप कॉमन लेकर इस 2 को कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। n by 2, ये 2 और इसमें से 2 कॉमन आया, 9 plus n minus 1 into 4। हाँ जी, अगर हमने 8 में से 2 लिया 4 बचेगा, 2 से 2 गया, n into 9 plus 4n minus 4 is 636, n into 4n plus 5 minus 636 is 0. So 4n square plus 5n minus 636 is 0. अब यहाँ ये एक बिग क्वाड्रेटिक बन गई। तो चलिए इसको D मेथड से सॉल्व करते हैं। A हमारा रहेगा 4, B 5, C is minus 636. So what is capital D? B square minus 4AC, 5 square minus 4 into 4 into minus 636, 25 plus 636 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 25 हमें ऐड भी करना होगा। 10176, 6 5 11 10, 1
10201। अब अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करें इसका, ये एक पैटर्न्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा आसान है। ये किसका स्क्वायर रूट रहेगा, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। 10201 लॉन्ग डिवीजन मेथड, 1 1s are 1, 1 plus 1 is 2, 0 2 नहीं जा सकता, 0 0 1, 1s are 2 0 1. So x is minus b plus minus root d by 2a. So minus of b, ये हमारा b है, -5 plus minus root 10201 upon 2 into 4. So -5 plus minus 101 by 8. अगेन आपको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। पॉजिटिव वैल्यूज में here we are calculating n, so यहाँ पर आप इसको n यूज करेंगे। तो यहाँ हमारी जो कैलकुलेशन है इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है देखिए, दो वैल्यूज आएंगी, -5 plus 101 by 8 -5 minus 101 by 8। नेगेटिव हमको स्किप करनी है। पॉजिटिव वैल्यू में 11 में से 5 गए 6, 96 by 8, 12 is the answer। 96 by 8, 12 is the answer। तो यहाँ हमने वो n कैलकुलेट किया, हम x ले सकते हैं, बाद में उसको n करके शो कर देंगे। नेगेटिव वैल्यू हम स्किप करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स हमारी नेचुरल होती हैं, दे कांट बी नेगेटिव। हम ऐसे नहीं कह सकते -5th टर्म, सो नेगेटिव हम नहीं लेंगे। 12 8s are 96, हमारा आंसर n जो है n is 12 in this question। 5th क्वेश्चन अगेन हमारा सिंपल है। फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, हमें साथ में सम भी गिवन है। s is 400। we have to find the number of terms and the common difference। अब l जो है हमारा, अगर हम शॉर्ट फॉर्मूले पर जाएं वहां काम आता है। Sn is n by 2 a plus n। 400 is n by 2 5 plus 45। बड़ा ही इजी फॉर्मूला है ये, n by 2 into 50 25। so what is n, ये नीचे आएगा 400 by 25, 25 1s are 25, 6s are, so what is n, 16। we have to find n and also we have to find the common difference। l is also an, so a plus n minus 1, n हमें पता है, d is 45, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की, 16 minus 1d is 45, 15d is 45 minus 5, 15d is 40, d is 40 by 15, 5 8s are 5 3s are। सो दो स्टेप्स रहेंगे इसमें, एक में हमने n फाइंड आउट किया और दूसरे में d। 6th क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 7th पर चलेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सिमिलर एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हम आपको सॉल्व करके देंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is 7 and 22nd टर्म d गिवन है और 22nd टर्म हमको 149 गिवन है, तो मीन्स हमें n भी गिवन है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। A22 is a plus 21d is 149, ये d यहाँ डालिए,
a plus 21 into 7 is 149, a plus 147 is 149, 149 minus 147 is 2. अब हमें इसमें sum of first 22 terms, again easy. अब इसमें S22 के लिए N22 है, फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई, लास्ट टर्म हमें पता है, S22 is 22 by 2, N by 2, A plus L, 11 into 151, मल्टीप्लाई करेंगे 1661 is the answer. Easy question. सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन. 8th और 9th क्वेश्चन फिर से सेम है, हम 9th सॉल्व करेंगे. 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द 9th क्वेश्चन? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP S7 is 49 and sum of 17 terms is 289. हमें SN ढूंढना है. अब जो हमारा इसमें 8th क्वेश्चन है, ऐसे ही उसमें हमें सेकंड और थर्ड टर्म्स गिवन है और हमें S51 फाइंड आउट करना है. मैंने आपके लिए SN चूज किया, अननोन समझ में आएगा तो आप दूसरा भी अच्छे से करेंगे. S7, अब दो सम गिवन है तो दो इक्वेशंस बनेंगी. S7 7 by 2 2A plus 7 minus 1D is 49. 7 by 2 2A plus 6D is 49. 2 इसमें से कॉमन आएगा, A plus 3D is 49. 7 इसमें नीचे आएगा. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या रही हमारी? A plus 3D is 7. इसी तरह से सेकंड पर चलेंगे, इसमें हम 17 by 2 2A plus n minus 1 16D is 289. 17 by 2 2 हम कॉमन लेंगे, A plus 8D is 289. अगेन 2 से 2 हम कट करेंगे, A plus 8D is 289 by 17. 17s are 289. अब ये अगर हमें 30 तक स्क्वायर्स याद हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती. और अगर आपको नहीं भी याद, आपको एक बार अगर इस तरह का कोई नंबर आता है उसको डिवाइड करके चेक करना है कि वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं फिर. सो A plus 8D is 17. दिस वॉज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब थर्ड चैप्टर हम सभी कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. एलिमिनेशन मेथड उठाएंगे. A plus 3D is 7. A plus 8D is 17. So एलिमिनेट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. -5D is -10. So D is 2. D 2 है, किसी में भी डालिए. A plus 3 into 2 is 7. A is 7 minus 6, that is 1. So what is Sn? N by 2. 2A plus n minus 1 into D. N by 2. 2 plus 2n minus 2. 2 से 2 कट हुआ. N by 2 into 2n. What is the answer? N square. देखिए Sn क्या आ गया? N square. कहां से हम चले थे और हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. 10th क्वेश्चन पर चलेंगे. 10th क्वेश्चन में अगेन 2 पार्ट्स हैं. हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे आपके लिए. सेकेंड पार्ट, यू हैव टू शो दैट A1 A2
up till an form an AP where an is defined as 9 minus 5n. जब हमें nth टर्म गिवन होती है, a1 आएगा पुटिंग 1 in place of n, a2 आएगा पुटिंग 2. So what is a1? 9 minus 5 into 1. 9 minus 5 is 4. What is a2? 9 minus 5 into 2. 9 minus 10 is minus 1. What is a3? 9 minus 5 into 3. 9 minus 15 is minus 6. To show that it is an AP, 3 terms are enough. आप 3 टर्म्स में a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2 अगर शो कर देंगे, इट इज एन AP. सो यू हैव टू चेक फॉर 4 minus 1 and minus 6. So a2 minus a1 minus 1 minus 4 minus 5, a3 minus a2. This is a1, this is a2 and this is a3. So minus 6 plus 1 is minus 5. a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. Therefore, it is an AP. 10th क्वेश्चन है ये हमारा. हमें इसमें nth टर्म गिवन थी 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करके a1 a2 a3 3 टर्म्स फाइंड आउट करो और उसके बाद ये फॉर्मूला चेक करो. तो यहाँ तक हमने 10 सम्स सॉल्व किए एक्सरसाइज 5.3 के. जो भी हमने आपको होमवर्क दिया है, आप हमें कमेंट्स में लिखकर उसके डाउट्स पूछ सकते हैं.